ماریا جدون کے ساتھ میں ہوں نصرت جاوید. اپنے فارمیٹ سے ہٹ کر آج ہم انٹرو اس لیے دے رہے ہیں کہ میرے پاس مہمان ہیں فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب. ان دنوں سیاسی مسائل جتنے گمبھیر ہو رہے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو زحمت دی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کریں اور جو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں ماری جا رہی ہیں اس میں کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ شاہد بھائی کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کے ساتھ بہت دیرینہ تعلقات ہیں اور دوستی سے کہیں زیادہ آلموسٹ یعنی کہ فیملی کی طرح ہیں, لیکن آپ کو یہ بات اپریسیٹ کرنا ہوگی کہ میں بد نصیب ذات کا صحافی ہوں. اگر گھوڑا جو ہے وہ گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ تو اس لیے سوال تھوڑے سے کچھ کرنے پڑیں گے. میں بہت حیران ہوا ہوں سر. یہ گھوڑا کون اور گھاس کون؟ میں گھوڑا ہوں جی, اور سیاستدان جو ہے نا ہمارے لیے گھاس ہوتے. نہیں شاہد بھائی, میں آپ کو سیریسلی بتاؤں, میں آپ سے میرے بہت سارے موضوعات پر اختلافات اور بحث مباحثہ بھی رہتے ہیں, لیکن یو نو اٹ کہ براڈلی آئی ریسپیکٹ یو کہ آپ کی کچھ پرنسپلز ہیں اور ان پہ آپ جھکنے کو کبھی بھی تیار نہیں ہوتے. دیٹ آئی اپریشیٹ, اور ہمیشہ آپ کے سامنے آپ کی عدم موجودگی میں کہا ہے. آپ جیسا ایک جیدار آدمی, فائٹر مزاج کا آدمی, جب ایک ٹیلی ویژن پر یہ کہے کہ میں نے یہ جو الیکشن اب شاید 90 دنوں میں ہونے والے ہیں, میں شاید استعمال کر رہا ہوں, میں اس میں حصہ نہیں لوں گا, تو یہ پیغام مجھے یہ دیتا ہے کہ آپ شکست خوردہ ہو گئے ہیں. کیا یہ میری سوچ درست ہے؟ اگر نہیں ہے تو مجھے بتا دیں. سخت بات کر دی ہے. میرا تاثر یہ مل سکتا ہے جو آپ نے بات کی ہے. میں نے یہ بارہا کہا, ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ کہا ہے کہ اگر الیکشن بے مقصد ہوں تو ان میں حصہ لینے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور میں آپ کو پورے جو کم از کم میری نالج ہے یا میری سوچ ہے, جو میرا تجربہ ہے, یہ الیکشن کچھ بھی نہیں دیں گے پاکستان کو. یہ عام طور پہ الیکشن ہر سیاسی جمود کا, ہر سیاسی مسئلے کا حل ہوتے ہیں, لیکن یہ الیکشن نہیں ہے. یہ الیکشن کوئی حل نہیں دے پائیں گے. اس لیے سلیکشن کہیں گے نہیں, میں الیکشن آپ پاکستان کا فیئرسٹ الیکشن بھی کروا دیں جس کو انگلی نہ اٹھا سکے, اس کے باوجود بھی حل نہیں آئے گا. اس لیے کہ آخر ملک کے جو حالات ہیں کسی نے ان کا حل تلاش کرنے ہیں, ملک کو آگے چلانا ہے. آج پاکستان کی کیفیت یہ ہے, سیاست کی کیفیت یہ ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر ہر سیاسی جماعت, ہر سیاسی لیڈر حکومت میں رہ چکا ہے. ٹھیک, کیا وہ مسائل کو حل کر سکیں؟ نہیں. کیا وہ مسائل کے حل کے قریب بھی آ سکیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ نظام میں صلاحیت ہی نہیں رہی. نظام کے اندر نہ سوچ رہی ہے, نہ فکر رہی ہے کہ کس طرح آپ نے ان مسائل کو حل کرنا ہے. نہیں, لیکن دیکھیے میں آپ سے براڈلی ایگری کرتا ہوں, اور خاص طور پر جب میں نوجوانوں سے گفتگو کرتا ہوں, اور خاص طور پر یہ جو ماریا بی بی کی جنریشن کے لوگ ہیں, ان کے اندر جو ایلینیشن, جو اکتاہٹ اور جو نفرت ہمارے سیاسی نظام کے بارے میں پائی جاتی ہے, میں تو اس کے بارے میں بعض اوقات بہت پریشان ہو جاتا ہوں. میری اپنی بچیاں ایسا محسوس کرتی ہیں. لیکن اب نظام کو بدلنے کا تو یہی طریقہ ہے نا کہ ایک آئین ہوتا ہے. آپ اگر اس آئین سے مطمئن نہیں ہیں تو اسے بدل دیں, اس میں تبدیلیاں لے آئیں. اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی منتخب فورم ہوگا نا, یا ایک نئی دستور ساز اسمبلی بنا لیں. لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور جو ہے وہ سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے کہے کہ اچھا بھائی یہ طریقہ, تو وہ کہے کہ یہ لیں دستور. تو یہ واقعات تو پہلے بھی ہو چکے ہیں نا. 1962 میں ایوب خان صاحب نے دیا تھا کہ نہیں, دیکھیے دستور کی بات نہیں ہے, دستور تو موجود ہے. کیا ہم نے دستور کو فالو کیا ہے؟ نہیں. کیا ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے؟ نہیں. میں اس سے بھی پیچھے آ کر, یعنی میں تو ایک کم سطح کی بات کروں گا کہ حکومت بھی آخر چلنی ہے نا. ٹھیک, حکومت کا نظام کون چلائے گا؟ آپ کو خرابی نظر آ رہی ہے. میں ہمیشہ نیب کی بات کرتا ہوں. آج اگر ایک سب سے بڑی وجہ ہے حکومت کا نظام کیوں نہیں چلتا, وہ نیب ہے. ٹھیک ہے. اور ایک کالا قانون, ایک انتہائی درجے کا غلط قانون 25 سال سے ہم نے دل سے لگائے بیٹھے ہیں. اس ملک کے سیاستدان, نیب کا اطلاق صرف سیاستدان پہ ہوتا ہے.
ना वो आप पे होता है, ना वो जज पे होता है, ना वो जर्नैल पे होता है, ना वो बिजनेसमैन पे होता है। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स की तो काफी तादाद आपके साथ रही है जी वो जैसे फवाद साहब जैसे या नहीं हातिमा जोड़ना जैसे। पड़ता है ना अच्छा। हम तक पहुंचने के लिए उस ब्यूरोक्रेट को। इसीलिए आज कोई ब्यूरोक्रेट भी काम करने को तैयार नहीं है, तो हम उसको भी कुछ नहीं कर सके। अगर हम इस सतह का फैसला भी नहीं कर पाएंगे, आज कोई हुकूमत का मामला हो, ब्यूरोक्रेट कहता है जी मैं तो कल लैब में फंस जाऊंगा, सर, लेकिन मैं समरी नहीं मूव एक करता। मेरी इल्तिजा सुनिए, मुझे ये बात पता है कि आपने बहुत जायज वजूहात की बिना पर, एक तो मुझे ये भी पता है, मैं ये रिवील कर सकता हूँ कि आप जाती तौर पर यानी तहरीक अदब एतमाद के जरिए इमरान खान को हटाने में बहुत ज्यादा कीन नहीं थे। ये बात मुझे पता है। आप अगर तरदीद करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी खामोशी शायद तस्दीक कर देगी। लेकिन जब हुआ, आप वाजिब वजूहात की बिना पर काबीना का हिस्सा नहीं बने। उसके बावजूद ये जो हुकूमत आई सर, इसकी जो फैसला साजी थी और ख़ास तौर पर मुआशी फैसला साजी, स्पेशली उन दिनों जब मिफ्ता साहब वज़ीर ख़जाना थे, और इनर्जी इश्यूज वो तकरीबन आपको आउटसोर्स कर दिए गए कि जी आपको हल निकालें। तो आप अपने इस कद काठ का फ़ायदा उठाते हुए आप इंटरनल मीटिंग्स में सर आप ये भी तो कह सकते थे ना कि यार एहतसाब का भी तो कुछ कर लो, फिर बाकी चीज़ें तो करते रहेंगे। आपने किया और फिर मायूस हुए। नहीं देखिए, सब बातें हुई ना, लेकिन उन सब बातों में हायल यही बात है कि कोई अफसर भी काम नहीं करेगा। और आपका जो तजुर्बा हुआ है कि आप भी नहीं कर रहा, आज भी नहीं करेगा। क्यों करेगा? मैं आपको आला तरीन सतह की काबीना की कमेटियों, काबीना की बात करूंगा कि वो भी फैसला करते हुए घबराते हैं कि कल नैब क्या करेगा। वहां जो समरी लाने वाला अफसर है, वो सबसे पहली सोच ही होती है कल मैं जो समरी लेके जा रहा हूं इसमें नैब का क्या सोच होगी, नैब कहां से मुझे पकड़ लेगा। जब आप इस खौफ में हुकूमत चलाएंगे तो कोई हुकूमत नहीं चलेगी। लेकिन आप तो इतने मेहरबान हो गए कि आपने पहले जो है वो जो 90 दिनों वाला एक काला कानून था जी, वो बाकायदा के जमानत का भी हक नहीं है, आपने उसको कम किया बिल्कुल लिजिटिमेट रीजंस की बुनियाद पर, 14 दिनों के लिए। उसके बाद आपने रातों रात अचानक ऑर्डिनेंस की सूरत में वो 30 दिन कर दिया। ये बात जहन में रखे हुए कि 12-13 अगस्त को तो आपने घर चले जाना है, तो आप तो नैब को दोबारा वही कुल्हाड़ा देकर जा रहे हैं जिसका आप अभी तक वो आपने इख्तियारात बढ़ा दिए, इसकी भी कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं है, लेकिन वो एक सोच की अक्कासी करती है कि आप आज भी ये समझते हैं कि शायद नैब एहतसाब करता है। ये सोच कहीं पे है कि अगर मेरा नहीं करेगा तो आपका तो कर देगा ना। ठीक। लेकिन हम ये नहीं समझते कल मेरा ही होना है कि मेरे खिलाफ इस्तेमाल होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक ये नैब का इदारा रहेगा, आपका अफसर काम नहीं करेगा। सर ये तो वही पैटर्न है जो पिछली हुकूमत में चल रहा था, आपकी अब हुकूमत आई तभी वही पैटर्न है। तो आपका यहाँ पे क्या रोल रहा? आपकी पार्टी ने आपने अपने तहफुजात रखे तो डिड लिसन टू इट? नहीं देखिए, तहफुजात की बात नहीं, खुद समझना चाहिए ना कि हुकूमत नहीं चल रही। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जो मर्जी कहते रहे, जो मर्जी फैसले करते रहे, कोई अफसर काम नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने खुद इस्तेमाल किया नैब को अपने सियासी मुखालफीन को जेल डालने के लिए। वो तो जब वो जेल डालना पड़ा तो फिर अफसर को पकड़ना पड़ा, क्योंकि हमारी हुकूमत में प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, एक समरी का मालिक जो होता है वो सेक्रेटरी होता है, मिनिस्टर सिर्फ उसको एग्री करता है। अगर आपने मुझे पकड़ना है तो पहले सेक्रेटरी को पकड़ना पड़ेगा। ये बात जब आपको समझ आएगी फिर आपकी हुकूमत चलेगी, आपकी हुकूमत नहीं चल सकती। बहुत स्ट्रेट आपसे सवाल करता हूँ जी, क्या ये खाली सियासी कुव्वतों का छोटापन है, लैक ऑफ विजन है, कि वो समझते हैं कि यार ये कानून रहे तो मैं हुकूमत में हूँगा तो मेरे काम आएगा मुखालफों को दबाने के लिए, या ये जो कानून है गैर सियासी कुव्वतों को जो हमारे मुल्क का सियासी नक्शा जो है बनाने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, कौम को सीधी राह पर रखने की इन्हें 1950 से आदत है, क्या ये उनका फेवरेट है? ये इतना तो क्लियर करते हैं खुदा के लिए, आप इतना अर्सा गुजारने के बाद। आप देखिए, ये मैं इनके लिए बताना चाहता हूँ अच्छा, मुझे नहीं। जावेद साहब उन चंद जर्नलिस्ट में से 5-6 लोग हुआ करते थे जो इस मुल्क की सियासत बनाते थे या बिगाड़ते थे। उस माने प्रिंट मीडिया होता था तो शायद बिगाड़ी है। नहीं तो ये इन सब बातों का जवाब मुझसे बेहतर जानते
देखिए नैब बनाया किसने, यहाँ आपको जवाब मिल जाएगा नैब बनाया किसने था, जनरल मुशर्रफ किस साहब ने। मकसद के लिए, जाहिर है। सियासत को कंट्रोल करने के सही लिए। बात। आज भी वही मकसद है। मुझे ये बताइए नैब ने पिछले 25वां साल है, सही। कितने सियासतदानों का एहतसाब किया है? एक, नवाज शरीफ। हाँ, एक आदमी को आपने कन्विक्ट किया सही। और मुकम्मल झूठे मुकदमों में जज ने खुद कहा कि मैं ब्लैकमेल हुआ हूं। एक ये आपकी परफॉर्मेंस है। नहीं शायद भाई, लेकिन यानी देखिए- नैब ने ये प्रूव किया है कि इस मुल्क के तमाम सियासतदान ईमानदार, बासूल और करप्शन फ्री लोग हैं, किसी को अपने पकड़ नहीं सके हैं। सही। पिछली हुकूमत आप देख लें, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन आप यही ठहर जाए ना। देखिए, आप आवाम में घुलने मिलने वाले सियासतदान हैं। मैं भी जब तक मेरे में कुव्वत और तवानाई थी तो मैं लोगों में घूमने फिरने का आदी था। आम आदमी से बात करें, वो कहें जी ये अभी जो आप बात कर रहे हैं, वो सुन के वो टीवी पे ये सोचेगा कि जी शायद खकान अब्बासी बात तो दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन यार ਉਹਦਾ सक्का भरा ते वजीर आजम है, जो अपने भरा ਨੂੰ नहीं बचा सकिया या ਉਹਨੂੰ रिहेबिलिटेट नहीं कर पाया तो साढ़े किवें काम आएगा? तो उसका तो आपके पास जवाब नहीं है ना। फिर ये जवाब है क्या कि प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इख्तियारात नहीं है कि अपने भाई को बचा सके। फिर आप वजीर आजम क्यों बनते हैं? वज़ीर आप भी आज़म क्यों ये बनते हैं? वज़ीर आज़म का कोई अपने ऐसे केसेस इख्तियारात और नहीं है। बाकी कोई केस देखे, तो खत्म करवाए ना। ये बड़ी गलतफहमी है। आप कानून के अंदर रहकर आपके पास कोई इख्तियारात नहीं है कि नैब के मामलात में इंटरफियर कर सकें। ये तो पिछले वज़ीर आज़म साहब थे, उनका काम था वो क्लेम करते थे कि इसको मैंने अंदर किया, मैंने बाहर करवाया। उन्होंने एक वजीर बनाया हुआ था जो नैब से डील करता था। आपका अपने जाती तजुर्बे से ये अंदाजा है कि क्या वाकई ये फैसले में साबिक वजीर आजम का भी कुछ अमल दखल होता था या वाकई कुछ और करते थे? नहीं, मुझे देखे, मैं 10 महीने वज़ीर आज़म रहा, मेरी कोई बात कभी नैब के चेयरमैन से नहीं हुई। मौजूद है, पूछ लें उनसे। नैब का चेयरमैन हमने बनाया नया, बहुत बड़ी गलती थी, सही, लेकिन बना दिया। कभी उनसे मेरी मुलाकात भी हुई नहीं। एक कंसेंसस से बनता था, नाम आए थे, ये कंसेंसस हो गया, बात खत्म हो गई। पिछला वज़ीर आज़म तकारीर में कहता था ये मैंने आज विकेट गिरा दी है, इसको मैंने अंदर कर दिया है। ये मैं तो नहीं कहता था, वो खुद क्लेम करते थे। नैब ने कभी उस बात की नफी नहीं की। एसी उतार दूंगा वगैरह जी, नैब की कभी नैब ने नफी नहीं की इस बात की। और एक वजीर मुकर्रर था जो प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में बैठता था, जो डेली बेसिस पर उनकी मुलाकात और उनकी राब्ता था नैब चेयरमैन से। आप नैब चेयरमैन से बुला के पूछ लें, वो खुद लोगों को बताते हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर फोन करता था, कितनी दफा करता था, दिन में कितनी दफा करता था और क्या लफ्ज इस्तेमाल करता था, आप हैरान हो जाएंगे। इस हद तक वहां गठजोड़ था। यहाँ तो आप नैब चेयरमैन पिछले भी रहे, ये भी रहे, पूछ लें इनसे कभी वज़ीर ने फोन किया या नहीं किया। नहीं, लेकिन आप ये भी तो कर सकते हैं ना मतलब कि शायद भाई आप बजाय इलेक्शन से दूर रहने के फर्ज करें आप अभी अपनी इंतखाबी मुहिम का 1 पॉइंट एजेंडा बनाते कि जी एहतसाब के नाम पर पाकिस्तान के साथ ये हुआ है और हम आपसे वादा करते हैं कि हमें आप अख्तियार दें तो हम इस इदारे को खत्म कर देंगे। वो क्यों नहीं कर रहे? मेरा एहतसाब या नैब से बराए इख्तलाफ नहीं है। नहीं, वो मेरा इख्तलाफ जो उनका असर है निज़ाम पर, उस पर है। और ये मैंने एक आपको मिसाल दी है नैब। यहाँ तो जो हुकूमत का पूरा निज़ाम है आपको बदलना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आज सलाहियत नहीं है सियासतदानों में, सियासी जमातों में इस निज़ाम के अंदर कि इसको हल कर सके। पहले आप बैठें, इस बात का तयन करें कि मुल्क हमने चलाना कैसे है। नहीं, लेकिन इनको बिठाएगा कौन ना? बिठाएगा कौन? प्राइम मिनिस्टर साहब दावत दे दें, नहीं बैठे तो ना बैठे। वो आप तो कोशिश खुद तो बेचारे करें ना। 12 अगस्त को जा रहे हैं। ब्रेक का भी टाइम है, तो अच्छा, ब्रेक के चलिए। बाद हम पूछ लेते हैं खान साहब से कि कौन बिठाएगा इन सबको एक पेज पर। जब बिठाया जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसका हिस्सा बनाया जाएगा। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं साबिक वजीर आजम शाहिद हक्कान अब्बासी। सर, ब्रेक को जाने से पहले आप बता रहे थे कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे बैठने की जरूरत है। सबसे पहला सवाल, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये कि कौन बिठाएगा। सेकेंडली, आप क्या समझते हैं कौन कौन से स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए टू डिसाइड कि आगे क्या करना है? स्टेक होल्डर्स मुल्क में कौन है? सियासतदान है, जुडिशरी है, फौज है। ठीक है, इनकी लीडरशिप बैठेगी। ये 6-7 आदमी है, इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। कौन बैठाएगा? मेरा ख्याल है ये
تو سوال بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں فکر ہے سب کو پاکستان کی تو سارے اکٹھے بیٹھ جائیں, خود بیٹھ جائیں. کسی کو دعوت کی ضرورت نہیں ہونی لیکن- چاہیے. جان کی امان پاتے ہوئے جی. کرتے ہیں. یہ جن سٹیک ہولڈرز کا آپ ذکر کرتے ہیں, میری اور آپ کے قسمت کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوتا ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں, ان کے آئندہ آنے والے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ وہ ٹاکنگ ٹرمز بھی نہیں ہیں, جی تو وہ آپ کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے سر؟ نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, خبر خرابی تو ہوئی نا, جی ہاں. کوئی وجہ مل گئی آپ کو کہ نظام کیوں نہیں چل رہا. میں اگر اس ملک میں سپریم کورٹ قانون سے, آئین سے انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرے گا, یا فوج کرے گی, یا سیاستدان کریں گے, پھر ملک نہیں چلے گا. اور یہ کیفیت آج ہماری ہے. آپ سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھ لیں, جو انٹرفیئرنس ہمارے نظام میں اسٹیبلش طرف سے ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جو کچھ سیاستدانوں نے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ سیاستدان, اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے, ان کو آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو پولیٹیکل پارٹیز بھی جب ایک پیج پہ نہیں بیٹھی ہوں گی تو پھر کس طرح سے چیزیں آگے لے کر چلیں گے؟ یہ 2018 کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے ہیں. اس سے پہلے الیکشن تلخ ہوتے تھے لیکن نظام چلتا تھا, پارلیمان میں ایک اپوزیشن ہوتی تھی, ایک گورنمنٹ ہوتی تھی. یہاں تو نفرت ہوئی, دشمنی پیدا ہو گئی, سیاست دشمنی میں تبدیل ہو گئی, کیونکہ آپ نے 2018 کے الیکشن چوری کیے, آپ نے ایک نیریٹو کریٹ کیا دوسری جماعتوں کے خلاف, ایک شخص کو لے کر آئے, اور نظام دھرم برم ہے. اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کسی کو اگنور نہیں کر سکتے, پبلک اوپینین کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. آپ اگر آپ ٹیبل میں بیٹھیں گے تو اس میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو ہونا ضروری ہے, اور آگے کا راستے کا تعین کریں, کیونکہ جو فیصلے آپ نے کرنے ہیں ایک جماعت یا ایک شخص, ایک قیادت اس کا بوجھ برداشت نہیں کر لیکن سکتا. سر آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس بات کو, یقینی طور پر آپ مجھ سے زیادہ جانیں گے کہ یہ ایک صورتحال بن رہی تھی, مذاکرات ہو رہے تھے جس میں تحریک انصاف کو باقاعدہ ان کے بڑے صاحب کی اپروول کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب جو ہے ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور وہاں پہ کچھ ایسی صورتحال بن رہی تھی, آپ کو یقیناً مجھ سے زیادہ علم ہوگا, کہ جی بجٹ کی منظوری کے بعد جو ہے وہ ہو جائے. انہوں نے جب اطلاع دی اپنے باس کو تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کو برا بھلا کہا اور کہا کہ آپ تو ٹریپ ہو رہے ہیں. تو اب بتائیے نا اس صورتحال میں آپ دوبارہ, اب کل اس کا پرویز خٹک صاحب نے ریفرنس بھی دیا اپنا, وہ جو ایک اپنی کر رہے تھے کہ جی یہ کبھی کون کو بتانا پڑے گا, لوگ حیران ہو جائیں گے. خیر وہ تو ان کا اپنا ایک نان سٹارٹر قسم کا ایونٹ رہا, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن اگر دیکھیے نا, یہ اداروں میں خود ہم آہنگی نہ ہو سر, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایز اسٹیک ہولڈرز, کیونکہ وہ تو پھر اس کا براڈر ہو جائے گا نا اسپیکٹرم, کہ جی سیاستدان بھی بیٹھا ہوا ہے, ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آرمی لیڈرشپ بھی بیٹھی ہوئی ہے, تو اس کے لیے تو کوئی بہت ہی کوئی مطلب کہ افلاطون کو پیدا ہو, قابل عزت آدمی پیدا ہو, تو ان دا گیون سچویشن تو یہ حالت ہے کہ جی جیسا تیسا الیکشن لڑو اور آؤ اور اس میں سے کوئی راستہ بنانے کی کوشش کرو. ابھی مجھے ویسے پیغام بھی یہ آ رہے ہیں کہ جی آپ یعنی کہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں وزیر اعظم, یہ ابھی جو میں نے بریک میں دیکھا شاہد خاقان عباسی صاحب, لیکن ان سے درخواست کریں کہ وہ سسٹم کے اندر ہی رہ کے سسٹم کو درست کرنے کی کوشش کریں, ناراض ہو کر جو ہے وہ اس سے الگ نہ ہو جائے. اس کو کیسے جسٹیفائی کریں؟ دیکھیے میری ذات کی بات نہیں ہے, جو آپ نے بات کی پہلے اس پہ بات میں کر دیتا ہوں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ذمہ داری تو انہیں کی ہے نا, یا اصلی اسٹیک ہولڈر کی نہیں, جو سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو بازی میں رہے ہیں, میں نے ذکر کر دیا, فوج ہے, جوڈیشری ہے, اور جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ جو بات چیت ہو رہی تھی, مجھے اس کا کوئی ڈیٹیلز علم نہیں ہے, میں نے بھی سنا ہے, وہ کس مقصد کے لیے تھی؟ مقصد یہ تھا کہ الیکشن ہو جائیں, کوئی سیاسی مقاصد نکل آئے. میں سیاسی مقاصد کی بات نہیں کر رہا, میں ملک کو چلانے کی بات کر رہا ہوں کہ الیکشن کے بعد ملک کیسے چلایا جائے گا. صحیح. آج اگر آپ اس کا تعین نہیں کریں گے, جس کے اندر گورننس کا نظام کیا ہوگا, یہ نیب کا کیا کریں گے, آپ نے جو ریلیشن شپس ہیں جوڈیشری پارلیمنٹ کی, جوڈیشری ملٹری پارلیمنٹ, یہ ساری ریلیشن شپ جو افیکٹ کرتی ہیں, ان کا تعین آپ نے کرنا ہے. آپ نے آگے کا ایک اکنامک روڈ میپ آپ نے بنانا ہے. اس کا جب تک آپ بیسک پرنسپلز کا اور ڈائریکشن کا فیصلہ نہیں کریں گے, آج الیکشن آپ کو کچھ نہیں دے گا.
अच्छा चलें। आपने कहा कि उसके लिए बड़े आदमी चाहिए जी। क्या हम इस बात के इतराफ कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में कोई बड़ा आदमी नहीं है? महसूस तो यही होता है। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। मतलब कि देखिए, मैं वो बेवकूफ़ आदमी था, यानी प्लीज, मेरी तो अपनी जिंदगी डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई है। अदलिया आज़ादी की तहरीक, आप भी ज़ाहिर है उन दिनों काफ़ी मुतहर्रिक थे। हम 8 महीने टीवी से भी यानी पुल ऑफ किए गए, आखिर में वो अरसलान के अब्बू ही साबित हुए। तो डिसअपॉइंटमेंट्स तो होती हैं, लेकिन चलें यूँ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी आज के जो वज़ीर आज़म हैं वो माजी की तलखियों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि लोगों को पार्टीजन या आज की हुकूमत में शामिल लोग, लेकिन क्या ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि यही स्टेक होल्डर किसी तरह मिल मिलाकर खामोशी से एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऐसा काबिल एतबार ढूंढ लें कि वो जब ओथ ले और तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के ये कहे कि यार बिफोर वी हैड टू इलेक्शंस लेट्स सिट टू फाइनलाइज दिस, क्या ये भी इम्कान नहीं है? इम्कान क्या, मैं यही कह रहा हूँ, पहले तो बैठना पड़ेगा ना, रिपब्लिक व्यू में बैठना पड़ेगा। ये अब सबको नहीं बैठ सकते कि हमने आपस में मुज़ाकरात कर लिए। ये पता होगा कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, और आप जिस दिन आप ये करेंगे आप देखेंगे आपकी मार्केट्स पे क्या इफेक्ट आता है इस बात का। आज इस मुल्क का हर शख्स, इस मुल्क में इन्वेस्टर, इस मुल्क में कारोबार करने वाला, इस मुल्क की फाइनेंशियल मार्केट्स इसी बात को देख रही हैं कि यहाँ पर ये जो लड़ाई झगड़े का जो माहौल है, जो एक दुश्मनी का माहौल है, ये ख़त्म हो और कोई रास्ते का तयन हो कि मुल्क चलेगा कैसे। हर आदमी ये चाहता है। तो आज इम्तिहान लीडरशिप का है, चाहे मिलिट्री हो, पॉलिटिकल हो, जुडिशल हो। कि कल यहाँ मैंने सुना है हर शख्स लेगेसी की बात करता है। मेरा जिंदगी का तजुर्बा ये, जो आदमी लेगेसी की बात करता है उसकी कोई लेगेसी नहीं होती। लेगेसी आपके वो काम होते हैं जिसको कल तारीख किस तरह याद करती है। अगर आज जो लीडरशिप है ये नहीं बैठेंगे, ये रास्ते का तयन नहीं करेंगे, तो कल तारीख इनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी। अच्छा मुझे ये बताइए, चले जी, नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट ही के हाथों ताहयात नाअहल करार दे दिए गए। फ़र्ज़ कीजिए वो वतन लौटते हैं और वो इंतहाई खुले दिल से आने से पहले ये करते हैं कि मैं माजी की तमाम तलखियाँ भुलाकर, तो क्या उस सूरत में भी मुमकिन है कि नहीं? उसमें भी आपको जी बिल्कुल, ये उनके लिए एक बड़ा कदम होगा और उसके असरात मुल्क पर होंगे, इसमें कोई शुबा नहीं है। आप लेकिन वो ये करना चाहेंगे? इब्तिदा देखिए, ये उनका फैसला है। नहीं, आखिर आप ऐसे तो ना कहना। मैंने आपके उनके साथ बहुत दरीना ताल्लुक। आना भी तो जरूरी है ना। नहीं, मैं कम से कम ये समझता हूँ कि उनमें ये कैपेसिटी है कि वो ये फैसला कर सकते हैं। यानी ही कैन एक्ट लार्ज हार्टेड। जी जी। लेकिन अगर वो बेनजीर भुट्टो के साथ बैठ सकते हैं और चार्टर मिसाक जमहूरियत साइन कर सकते हैं और नेक नीयती से कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये काम भी हो सकता है। लेकिन असल बात यह है कि आज की जो लीडरशिप है इसके पास और चॉइस कोई नहीं है। इसको अपने ये छोटे छोटे जो अपने मफाद हैं इदारों के या निज़ाम के, उससे हटकर मुल्क के मफाद को देखना होगा। लेकिन उसमें आप ये समझते हैं कि वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर्स, जिनका मैं पसंद करूं या ना करूं, आप करें या ना करें, मारिया करे या ना करे, आम तासुर ये है कि हमारे खल्क़ खुदा की अक्सरियत जो है वो आइंदा इंतखाब में उन्हें वोट देना चाहती है। मैं ज़मान पाक उन साहब का, जिनका नाम भी लेना आजकल मायूब समझा जाता है टीवी पे, जो पैमरा के लाइसेंस के साथ है। ऐसी कोई बात नहीं, खैर कभी नवाज शरीफ साहब का नाम लेना भी मायूब था। एनीवे, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ सर कि फ़र्ज़ करें कि वो अगर एडमेंट हों कि लोग मेरे साथ हैं, तो मैं क्यों जाके किसी से बात करूं। ये इन लोगों को तो मैं शुरू से मैं यानी चोर लुटेरे कहता रहा हूं। मेरी तो सारी पॉलिटिक्स की बेस ही ये थी कि ये बारियां लेने वाले चोर और लुटेरे हैं। द डे आई सिट विद देम आई विल लूज माय बेस, जिसको आप कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। उनके लिए क्या टेम्पटेशन है इसमें? देखिए, ये उनकी सोच है। और आपने अक्सरियत की बात की कि अक्सरियत अकलियत का फैसला जो होता है वो पोलिंग स्टेशन पर होता है। जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो वहां पता चलेगा। नहीं, मैंने तासुर की बात किया सर, मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, ये तासुर नहीं, मुझे ये तासुर नहीं है। ये तो वक्त बताएगा ना कि कौन इलेक्शन जीतता है। लेकिन जहां पर ये बात है कि आपकी सोच क्या है, मैंने यही कहा आपको सोच बदलनी होगी। जो पिछले, जिनका नाम आप नहीं लेना चाहते, मैं
मैंने तासुर ये दिया कि मैं पैमरा के नहीं, मैं पैमरा We can say chairman PTI. चले मैं सर कानून के तहत, मैं सर कानून का देखिए जो- बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, खुदा का वास्ता जाहिर साहब क्या कर रहे हैं, आपसे भले की उम्मीद थी ये तो नहीं वो देखिए जो भी है, मैं पिछली हुकूमत जो थी, जो पंजाब में खास तौर पर, पाकिस्तान मैंने सारी हुकूमतें देखी हैं 85 की, जाहिर है। बदतरीन और करप्ट तरीन हुकूमत पंजाब की पिछली हुकूमत थी बुज़दार साहब वाली। ये आप बच्चे बच्चे से पूछ लें, यानी ऐसे ऐसे काम हुए जिसका आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। पोस्टें बिकती थी, डीसी की पोस्ट, कमिश्नर की पोस्ट, पुलिस की पोस्टें बिकती थी। सबसे महंगी पोस्ट कौन सी बिकती थी? आप हैरान हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, वाह, डीएफसी 18 ग्रेड की पोस्ट होती है। 10-10 करोड़ की पोस्ट 6-6 महीने के लिए बिकती थी 10-10 करोड़। जी। लेकिन फिर और एक जिनका नया हिसाब मॉडल था होना कि चाहिए बुज़दार साहब का, उनका तो हो नहीं रहा। मैं यही कह रहा हूँ ना, एक तरफ फिर हम मैं- बहुत तो मैं ज्यादा- आपको क्या कह रहा हूँ कि नैब ने प्रूव कर दिया है कि वो करप्ट लोगों को पकड़ने के लिए नहीं है, उसका मकसद जो है पॉलिटिकल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। अच्छा, तो ये अब इन तो जो ये साहब हैं जो पिछले वज़ीर-ए-आज़म थे, उनको अब सोचना होगा, और जो उनकी वफाक की हुकूमत थी वो भी करप्शन से पाक नहीं थी, काफी करप्ट हुकूमत थी। मैं उसको करप्ट तरीन शायद ना कह पाऊँ, मुझे बहुत सी बातों का इल्म नहीं है, लेकिन इस बात में कोई शुबा नहीं है कि एक पैसे का काम उस हुकूमत ने 4 साल में नहीं किया। ठीक। करप्शन भी उसके अंदर मौजूद थी। तो ये जो बातें हैं, ये एहतसाब होता रहे इस मुल्क में, लेकिन आज जो भी पॉलिटिकल लीडर है जिसके पास वोट है, जो इस मुल्क के मामलात पर असरअंदाज हो सकता है, उसको बैठना पड़ेगा। और ये चार लोग, 4 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या 3 या 4 जो भी आप समझें, और फौजी लीडरशिप है और जुडिशियल लीडरशिप, ये बैठेंगे, आगे के रास्ते का तयन करेंगे, क्योंकि जिस नहज पे आप आज पहुंच चुके हैं, यहाँ से वापस आने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बंद गली में दाखिल हो चुके। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम ये बात भी करें, एक तरफ जहां इंजीनियरिंग की बात हो रही है, विक्टिमाइजेशन की बात हो रही है, वहीं पे इस वक्त हम एक तासुर ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं ब्रेक करने की भी कोशिश की जा रही है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खान साहब कहिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तस्खीर का अमल हम देख रहे हैं काफी तेजी से जारी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आती है, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस आती है, जिसका हमने देखा कि 24 घंटों के अंदर 12 लोग छोड़ के जा भी चुके हैं। डू यू रियली थिंक इज इट अ फेयर प्ले लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है? ये खत्म करने की कोशिश की जा रही है, पैदा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये हमारी सियासत का एक लंबा सफर है, उसके अंदर आपको बहुत सी ऐसी मिसालें मिलेंगी। तो अंग्रेजी में क्या मुहावरा होता है जी, यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड। सही। जो आपकी वलादत होती है, फिर वहीं पे प्रॉब्लम मौजूद है। तो ये वो जाने और उनके मामलात जाने। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सियासी अमल में इंटरफियरेंस जब होती है, उसके नताइज मुल्क के लिए अच्छे नहीं होते। ये जो आज जो मुल्क के माशी मसाइल हैं, मुल्क के दीगर मसाइल हैं, इसकी 2 बड़ी वजूहात जो मौजूदा है, मैं समझता हूँ, जो माजी करीब में है। एक जो 28 जुलाई 2017 का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, और दूसरा 2018 का इलेक्शन जो चोरी हुआ। इन मामलात ने आपके मुआशी मामलात को, आपके मुल्क के जो सियासी मामलात हैं, इन सब को इन्होंने उसकी खराबी को बहुत बढ़ा दिया, और आज उसको जी और उस जड़ें खोखली कर दी। और आज आप इस नहज पर खड़े हैं कि ना निज़ाम चल रहा है, ना मईशत चल रही है, और हम और मुल्क के लोग बेपनाह मुश्किलात के शिकार हैं। ये मामला शायद वैसे भी हो जाते, शायद टाइम ज़्यादा लग जाता, क्योंकि जिस रास्ते पर हम चल रहे थे वो दुरुस्त रास्ता नहीं था, लेकिन उसमें शायद 10-15 साल और लग जाते। लेकिन इन 2 फैसलों ने इस सारे मामले को ख़राब किया है। आज भी हर मामले का हल सियासी होना चाहिए। मैं किसी किस्म की गैर सियासी इंटरफियरेंस से सियासी मामला को हल करने का माजी में तजर्बे नाकाम ही रहे हैं। वैसे इनको अभी ब्रेक में खबर भी आई कि एजाजुल हक साहब नहीं होते थे, उनका पासपोर्ट इनको किसी ने बताया कि कैंसिल कर दिया गया है, तो वो इन पे इल्जाम लगा रहे थे कि आपकी हुकूमत की कर दिया है। तो मेरे वो पुराने दोस्त हैं, लड़का तुम्हारी हुकूमत ने, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता बात है। अच्छा, लेकिन नहीं, देखिए ये खराबी है। आप हमने 4 साल मैंने ECL में गुजारे, सही बात है। बहुत से लोगों ने, मतलब ये अजीब सी बातें हैं। उससे पहले भी 9 साल गुजारे थे मुशर्रफ साहब के जमाने में। असल में जो बात है ना, देखिए जी, हुजूर
मेरा जो मसला जो सबसे ज़्यादा मुझे यानी कि एजिटेट कर रहा है वो ये कर रहा है कि कल चलें जी, ये जो कह रही हैं ना कि जिन्हें कमज़ोर करने के लिए नई जमातें खड़ी की जा रही हैं, उनमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, उसके बुनियादी करता धरता हजरात में इसहाक खाकवानी साहब भी शामिल हैं। अब उन्होंने कल जनाब एक 2 ट्वीट लिखे, वो थ्रेड लिखा और वो 11:30 बजे तक 52,700 लोग देख चुके थे और उस पर एक बहस का आगाज था। उसमें उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा हालात में इलेक्शन हुए तो वो मुल्क को 1971 की तरफ ले जाएंगे। अब वो जमात जो खड़ी की जा रही है उसका एक बंदा ये यानी एलिजिडली मुबैना तौर पर, दूसरी तरफ आप जैसा आदमी जो है वो कहता है कि नहीं इस इलेक्शन का फ़ायदा ही कोई नहीं, हालांकि मुझे पता है कि आपके और उनकी सियासी सोच में बहुत फ़र्क है। तो अब मुझे जो बात मैं आपसे अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि अब ये जो वज़ीर आज़म साहब हैं ये तो जी 12-13 को चले जाएंगे, तो क्या और जो रवैया है दूसरे साहब का, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं तो अब इतना मुतहरिक रिपोर्टर नहीं रहा, लेकिन मेरे जो साथी हैं जो जहाँ मैं जब आता हूँ उन लोगों की जो 9 मई के वाक़यात के बाद वो ये समझते हैं कि देयर वाज अ पाकिस्तान बिफोर May 9th एंड देयर इज़ पाकिस्तान, वो जैसे 9/11 हुआ था इस तरह का। अब ये जो तपिश और ये जो एंगर है, अगर आप ये कहें कि आपको इसका इल्म नहीं है या आप बेखबर हैं, तो मैं भाई आपके मुंह पे कह रहा हूं, मैं आप पे एतबार नहीं करूंगा। तो क्या उसके होते हुए आप वाकई समझते हैं कि कोई माफी तलाफी या दरमियानी राह की गुंजाइश है? प्लीज मुझे इसके बारे में गाइड देखिए, करें। माफी तलाफी सियासत में सियासी बातों पर होती है। अगर मैं कानून तोड़ूंगा और मैं जिसका सबूत आपको मुहैया करना है, जिसने भी जो 9 मई को हुआ, ये नाकाबिले यकीन और नाकाबिले माफी बात है। ये मेरा जाती सोच है, इसलिए कि आपके मुल्क के फौज के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया, इस मुल्क के जत्थों ने किया, यही बात बहुत सी और जगह पर भी हुई और लाहौर में आग भी लगाई गई। इसका दुनिया किस नजर से इस बात को देखती है और इस बात को सोचें कि ये कितनी बड़ी खराबी है। अगर आप आज इस खराबी के जो लोग जिन्होंने किया, ये खराबी पैदा की, अगर आप उनका पीछा नहीं करेंगे, कानून के मुताबिक उनको कानून के मुताबिक सजा नहीं देंगे, तो ये फिर हुकूमत अपने काम में बहुत बड़ी कोताही बरत रही है। अच्छा, मैं आपको हुकूमत- बताऊं, वक्त जहाँ खत्म हो चुका है, last 1 पे minute। जहाँ पे मैं अब पहुंचा हूँ ना, अब मुझे ख्याल आ रहा है यहाँ से मुझे आपसे आगाज करना चाहिए था। हमारी बदकिस्मती, अब वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ भाई, और मैं ये जानता हूँ, मेरी लेकिन अब भी ये ख्वाहिश होगी, मुझे पता है आप एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन थे, आपको 1988 में 88 में 28 साल की उम्र में इंतखाब में हिस्सा लेना पड़ा, इसलिए कि आपके वालिद की एक हादसे में इंतकाल हो गया था। नहीं, मैं ये देखिए, और हमारी आप कोई बिल्कुल आप यानी सियासी खानदान से, सियासी खानदान से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये नहीं इलेक्शन चाहूंगा लड़ना या ना कि आप लड़ना ये इलेक्शन आपके न हल्के लड़ें। के अवाम फैसला करते हैं। मैंने अपनी राय का इजहार किया है कि आज आखिरी इलेक्शन- बात सिर्फ यानी मुख्तसरन पूछ जी जी मैं जानता हूं कि मियां साहब को आपको इनकार करना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है, बस औकात नॉट नहीं, ऑलवेज, बसा औकात। नॉट नहीं, देखिए, एक 35 साल अगर की दोस्ती फर्ज है, करे, मेरे बुजुर्ग की अगर वो दोस्ती। फर्ज करे आपको कहे कि नहीं लड़ना है शायद, तो फिर क्या करेंगे? ये बहरहाल ये आप हम पे छोड़ दें, हम क्या करते हैं। कहना जी लेकिन बहुत- मैं गुजारिश ये करूंगा कि इलेक्शन लड़ना या ना लड़ना उसका मकसद होना चाहिए ना। ठीक है, मैं आज अभी तक उस है मकसद का भाई। कायल नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल हम अपना बहुत ओवर शुक्रिया कैरी सर, कर आपने रहे प्रोग्राम को होंगे। टाइम आपको आइंदा फिर मैं दूंगा, ताकि और यहाँ से शुरू करूंगा आइंदा यहाँ से इंटरव्यू। आगाज होगा। यहाँ से अगले वक्त इंटरव्यू खत्म हो चुका है नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।